Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा माता जी। Hare Krishna. Dandavat Mataji. pranam. Dandavat pranam. Dandavat pranam. As always, excellent lecture, Mataji. Even though short purport, आपने बहुत सारा points cover किया. आपने you gave so many analogies as well, and उससे ज़्यादा lessons भी takeaways भी मिला है हमें. I'll just share a few things, Mataji. आपसे जो कुछ that entered my head, I will just share those, Mataji. First मुझे वो शिव जी का आप glorified शिव जी beautifully, माता जी. Whenever I meet people, वो लोग कहते हैं कि ओ ये इस्कॉन लोग हैं, they won't enter a Shiva temple, they don't respect all the demigods, but and particularly जो शिव भक्त हैं, they always get very defensive. मैं जनरली आई ट्राई एंड जस्ट हाईलाइट हमारा पॉइंट्स जो कृष्णा का व्हाट टू से हिज ग्लोरीज वो बता के आई जस्ट लीव इट एट दैट. बट अभी मुझे I have got a lot of what to say weapon shastra mila hai now I can use all of this, Mataji, to let them know. And also equally it is not like हम शिव जी को या डेमिगॉड्स को डिसरिस्पेक्ट करते हैं. वो तो दैट मैसेज सब लेक्चर्स में बहुत क्लियरली इट कम्स आउट, बट लोगों को इट शुड go across, यानी हम लोगों को ये बताना चाहिए because they have a गलत opinion about ISKCON that ये they don't go to demigods, they don't respect demigods. So उसके लिए I got a lot of points, I've taken notes also, Mataji, for that. मुझे ये पॉइंट भी बहुत अच्छा लगा अबाउट हाउ शिव जी एक राजा की तरह है, पर वो भिखारी की तरह he roams around like that, and he has his own संप्रदाय. So वो तेजस्वी है, he's beyond our understanding. इसके लिए आप जो एग्जाम्पल्स दिए थे वो अग्नि का एंड वाटर का, how they remain pure despite उसका जो एक्सटर्नल एक्टिविटी है, that was a very good analogy, Mataji. Then Sukdev Goswami भी he's clearly emphasized that if अगर कोई शिव जी को इमिटेट करना कोशिश करते हैं, देन उसका सर्वनाश होगा. एंड शिव जी का इंसल्ट भी नहीं करना चाहिए. सो मेरा टेक अवे, उसका इंसल्ट भी नहीं करना चाहिए, उसको गलत तरह से और गलत विचार से इमिटेट भी नहीं करना चाहिए. एंड उसका दक्ष का एग्जाम्पल भी आप दिए थे. माता जी, इस श्लोक में मेरा वन सेंटेंस दैट आई रियली लाइक्ड, एंड वो तो आई वांट टू ट्राई एंड फॉलो, वेयर जहाँ there is a sentence there, he says, where it says that Shivji is very great and his renunciation of all material enjoyment is an ideal example of how one should be materially unattached. सो ये भौतिकवाद से यानी वो डिटैचमेंट, शिव जी इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ डिटैचमेंट. हमें ऐसा पॉइंट्स लेके अगर फॉलो करना है तो ऐसा पॉइंट्स वी शुड ट्राई एंड फॉलो बिफोर वी इवन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट अदर थिंग्स दैट शिव जी डज व्हिच इज बियॉन्ड आवर कॉम्प्रिहेंशन. हमें रोज माया का अटैक होता है. इवन वन स्मॉल थिंग हमें माइंड को, बुद्धि को यूज करके वश में लाने में इतना मुश्किल होता है. एंड हियर शिव जी का he's been glorified so much by Prabhupada ji in this purport. ये मुझे I felt this is something that we can try and follow. शिव जी का अपने चित्रकेतु का एग्जाम्पल भी दिए थे टू हाईलाइट द पॉइंट. मुझे सबसे नम्र भाव which highlights the शुद्ध भक्त का that attitude, वो मुझे बहुत अच्छा लगा. Then 3.14.30 में अपने मैत्रेय मुनि का वो मीनिंग भी दिया, मित्र.
So हमें ऐसा मित्र मिलना चाहिए so that we can go ahead. And ये point भी अच्छा लगा माता जी, where आपने कहा कि how everybody gets attracted to something beautiful, especially for men seeing a beautiful women. पर इंग्लिश में भी हम कहते हैं ना कि you should not look at external beauty, but inner beauty को देखना चाहिए, because external beauty तो खत्म हो जाता है, पर जो inner beauty है यानी soul, that is always everlasting and beautiful. दूसरा माता जी, I just felt that सब not only sex desire, but जो कुछ desire है, best way to attack that is out of sight, out of mind. अगर सामने नहीं है तो मन उसमें नहीं जाएगा, पर सामने है तो that's when it becomes difficult to even control माता जी. मेरे लिए simple food, because being diabetic, ज्यादा खाना I cannot take on a regular basis. So इसलिए मैं अगर मेरे बेटे कुछ खरीद के रखता है, I tell him, oh keep it out of my sight. Oh at least मैं नहीं देख रही हूँ तो मुझे उसमें ध्यान नहीं जाएगा. So it applies to every every desire, and particularly आपने वो highlight किया यहाँ for sex desire also. And माता जी, then आप 31 में वो point भी बहुत अच्छा था माता जी, that mother has to be a devotee, because mother as a wife also father को husband को इस रास्ते में ला सकते हैं, and बच्चे को भी she can keep them under control and teach that, because ultimately वो mother ही teaches everything बच्चों के लिए. Of course father's involvement is also there. मुझे actually I read somewhere बच्चे का intelligence is also based on the mother. So devotion is based on the mother and possibly not the father. So mother को devotee होना चाहिए. And इसके लिए आपने रावण का example, you gave रावण का example, which was very good, Mataji. A few points that I thought I will share. To 29 में again, no, actually let me 30 में Prabhupada ji actually compares a married wife and a public prostitute, but वो purport में इतना वो condemn करते हैं दीति का behavior कि उसको prostitute wife कहते हैं because of her attitude. So हमें ये take away for me is जो कुछ role हमें दिया गया है, वो rules, regulations or responsibilities always हमेशा we have to follow it and do it, because ये wife से he just called her a prostitute wife because उसका behavior के वजह से. So wife है तो उसका rules and responsibilities को follow करना चाहिए, just name में नहीं होना चाहिए. That was my takeaway for that, Prabhuji, Mataji. And 3.14.31 में Haridas Thakur का example also highlights Krishna consciousness, purity of devotional service. In fact, frankly, as you're aware, I'm from Sri Sampradayam, पर मुझे Gaudiya Sampradaya, ISKCON, I like it a lot because it is open for all. Because वहाँ श्री संप्रदाय में you have to follow the rules. अगर मैं वो आचार्य को देखना है तो मुझे वो 9 यार्ड्स पहन के ही जाके देखना पड़ेगा. So बहुत restrictions and all that है, which is difficult to follow. But यहाँ to get into bhakti, even chanting भगवान का नाम, that is available to everybody. And birth के वजह से we don't get determined. That is why हमारे effort से, हमारे विचार से we can actually progress in this. वो मुझे I really like, and ये point gets highlighted by Haridas Thakur का example. माताजी, मुझे एक question है 3.14.31 में. वहाँ Prabhupada ji actually says that एक मिनट माताजी, let me just pull that. He says translation में, understanding his wife's purpose, he was obliged to perform the act. ये obligation क्यों है माताजी? Because Bhagavad Gita 1.37-38 purport में Prabhupada ji says obligation is binding when the effect is good, but if the effect is otherwise, no one can be bound.
तो यहाँ काश्यप मुनि क्यों he felt obliged, because he is like, at such a elevated level. So why did he think ये obligation है to please his wife? Because यहाँ Prabhupada ji clearly states that इसका effect definitely is not good. उसको भी वो पता है, given the time and all that. So why did he feel obliged? So दूसरा question, so or at least the other point is, frankly ये obligation नहीं है, उसको भी ये desire था, इसके वजह से did he do it? Because obligation है तो clearly Prabhupada ji says that we don't have to be obliged, इसका असर या effect अच्छा नहीं है. Then इसको कश्यप जी को ये पता है, because that also we see that इसको पता है that ये wrong time है, गलत time है, इस time नहीं करना है. But क्यों, the words used here are, he was obliged to perform the forbidden act. इसके बारे में if you can throw some light, Mataji, I would greatly be obliged. Hare Krishna. माता जी, दूसरा प्रश्न मुझे अच्छे से समझा कि कश्यप जी को पता था कि ये करने से गलत होगा, फिर भी उन्होंने ये क्यों किया, उन्होंने अपने वाइफ को क्यों नहीं समझाया. और दूसरा प्रश्न, ये दूसरा प्रश्न है. पहला प्रश्न मुझे समझ में नहीं आया. प्लीज आप मुझे अनुवाद करके अच्छे से समझाइएगा. मैं इन्हें बोलती हूँ हिंदी में तो ये समझ. माता जी बिकॉज एक्चुअली एक ही क्वेश्चन है मेरा, मेन क्वेश्चन, बिकॉज वो दूसरा क्वेश्चन तो इसका भी इच्छा था, इसलिए उसने किया. दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग, एंड आप दैट इज माय सेकंड क्वेश्चन. सो उसका भी वो डिजायर था, दैट्स व्हाई ये काम काश्यप मुनि ने किया. ओके, वो फर्स्ट क्वेश्चन, आई जस्ट वांट वो कंफर्मेशन का. मेरा पहला क्वेश्चन माता जी, वो अनुवाद में ये लिखा हुआ है कि इसका, ट्राई माता जी हिंदी में, इसका पत्नी का इच्छा समझ के कश्यप मुनि ने ऑब्लाइज को क्या कहते हैं, कश्यप मुनि फेल्ट दैट इसका ड्यूटी था या इसका कर्तव्य था ये काम करना, ऑल्दो उसको पता था कि ये फॉरबिडन एक्ट है, ये अच्छा काम नहीं है. सो वो ट्रांसलेशन में ऐसा है. हाँ, ओके, समझ गए. सॉरी मैं हिंदी स्टिल बैड. नहीं, मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, आपका हिंदी तो ठीक है. मुझे भी प्रभुपाद जी कहते हैं तो मुझे कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता है, और कभी कभी अच्छे से समझ में आता है, जो हल्का हल्का इंग्लिश होता है वो. तो सॉरी. तो आपका क्वेश्चन है कि यहाँ पर लिखा है कि ये जो कार्य है उसकी पत्नी की इच्छा समझ के उन्होंने किया, क्यों रोका नहीं, है ना माता जी? उसके पति को ही दोषी क्यों ठहराए, पत्नी को ही दोषी के. तो एग्जैक्टली इसके अगले श्लोका में वही है कि ये पंडित थे और ऋषि थे, सब कुछ जानते थे और शिव जी के भक्त के, उन्हें सब पता था कि ये करने से ये निश्चित ही ऐसी संतान होगी जो राक्षस, ये सब संध्या के समय करने से होगा, ये सब उन्हें पता था. फिर भी उन्होंने आने वाले भविष्य को प्रणाम किया और उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि ये सिर्फ कृष्ण भक्ति में ही संभव है अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना, अन्यथा नहीं. इसलिए हरिदास ठाकुर जी का उदाहरण दिया है कि किस तरह उनके सामने भी एक वेश्या सज धज के आई, उनका संग करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने अपने कृष्ण भक्ति से अपने आप को कवच कर लिया, ये कर लिया, और ये नहीं कर पाए. इन्हें सब शास्त्र पता थे, सब कुछ पता थे, लेकिन वो खुद भी उन्हें पता था ये सब करके गलत हो जाएगा, फिर भी उन्होंने आने वाले भविष्य को प्रणाम किया, और वो उसके साथ वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए. जब उनकी वाइफ उनके सामने ऐसे करने लगी तो वो भी कामुक हो गए और उसके साथ चले. Okay, Mataji, thank you very much. Oh, comparison actually gives me a better understanding, Mataji. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा. चलो प्रभु, मेरे को खाली 1 मिनट चाहिए जस्ट बिफोर गोइंग आउट, रिलेटेड है, इसलिए आई एम कमिंग इन बिटवीन.
तो थैंक यू माता जी फॉर दिस नाइस क्वेश्चन, बिकॉज इसमें यहाँ पे जो है हम लोग देखते हैं कि मुझे इसमें दो एस्पेक्ट दिख रहा है। वन वॉस, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि हरिदास ठाकुर बीइंग अ डिवोटी वो कंट्रोल कर पाए, और ही वाज लर्नड, उनको सब पता था रूल्स एंड रेगुलेशन, लेकिन वो कृष्ण कॉन्शियस न होने के कारण वो कंट्रोल नहीं कर पाया। दैट वाज वन थिंग। एंड अदर थिंग, अदर एस्पेक्ट इज, जैसे आपने पूछा कि ही वाज ऑब्लाइज्ड, तो व्हाई वाज ही ऑब्लाइज्ड? बिकॉज एज ए गृहस्था his wife was pleading for that action, and वो मतलब एज ए हस्बैंड ही हैज टू डू इट, बिकॉज इफ नॉट देन वो कहाँ जाएगी वो। So being a husband, it was his duty to fulfill her that desire. So that's why I think Prabhupada says that he was obliged to do that action. मतलब दो एस्पेक्ट है, एक तो he was not Krishna conscious, so he himself was also motivated, और दूसरा थिंग he was obliged because he being a husband, वो वाइफ उसको प्लीड कर रही है कि हम लोग जो है, मुझे बच्चा चाहिए, हम लोग ये काम करते हैं, एंड ही कुडंट से, मतलब वो चाहता तो बोल सकता था लेकिन नहीं बोला। वन मोटिव वाज बिकॉज ही हिमसेल्फ वाज मैरिड, एंड अदर कि उसका वाइफ है तो वो कहाँ जाएगी। So that's why being a husband, he was obliged to do that. I hope that clarifies your doubt, Mata. Hare Krishna. Yes, Prabhuji. Because he tried to dissuade her also pehle. And since she did not accept, he also ended up doing it. Yes, Prabhuji, I got it. Correct, Thank you. correct. Hare Krishna. Both the points, both of you, Mataji, Prabhuji, you clarified my points. Thank you, my doubt. Thank you. Hare Krishna. Thank you, Mata. Yeah, Sarudev Prabhu, Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। माता जी थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा क्लास दिया माता जी, आज का जो सेशन था। माता जी ये मेरा एक सवाल था प्रभु माता जी कि यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है कि कश्यप मुनि जो है वो शिव जी के अनुयायी है, तो अनुयायी और भक्त में डिफरेंस है माता जी? मतलब अनुयायी इज द फॉलोअर एंड भक्त बोले तो देयर इज अ डिफरेंस, नो माता जी? या एक ही वर्ड है माता जी? एक ही कह सकते हैं। भक्त मतलब वो अनुयायी, मतलब अभी हम लोग को भी बोल सकते हैं ना, ये कृष्ण के अनुयायी है, या कृष्ण हम लोग उस भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं ना। भक्त मतलब बहुत ऊंची श्रद्धा स्टेज होती है, लेकिन हम लोग सबको बोलते हैं भक्त भक्त। भक्त का मतलब बहुत हाई लेवल का, ये अभी स्टार्टिंग में थे, तो इसलिए भी उन्हें अनुयायी मतलब वो उन्हीं के दिखाए हुए मार्ग पर चल रहे थे, और इसके बाद वो भक्त हो गए। ऐसे ये मैंने जितना सुना है उसमें ही है, भक्त में और अनुयायी में। मतलब जैसे हम लोग साधना भक्ति के स्टेज पे होते हैं, तो उसे भी अनुयायी या वो संप्रदाय को फॉलो करने वाला इसे कहा जाता है। हरे कृष्णा, आप कहिएगा। प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ ना, करेक्ट, यस, वही है कि जैसे हम लोग रूपानुगाज हैं, रूप गोस्वामी के अनुयायी हैं हम लोग, तो वी कैन से इन ए वे कि दोनों सेम ही है। लेकिन जैसे भक्त जो है वो भक्त भगवान के लिए कुछ भी करेगा, फॉलोवर जो है हो सकता है वो कुछ चीजें न फॉलो करें। अभी जैसे बहुत लोग बोलते हैं, जैसे आजकल का इसमें ट्रेंड में लेते हैं कि बोले इस्कॉन के फॉलोवर हैं या हम सदगुरु के फॉलोवर हैं, तो हो सकता है कि वो मतलब 10 रूल है, 10 रूल में से 6 फॉलो करते हैं, 7 फॉलो करते हैं, हो सकता है नहीं करें। लेकिन भक्त जो है वो चाहे जो भी हो, वो जो है वो पूर्ण तरह से वो उसको मतलब समर्पित रहेगा। फॉलोवर बोल सकते हैं हम लोग, एक बेसिक पहला स्टेप है ऐसा। लेकिन ये मैं मतलब इंग्लिश टर्मिनोलॉजी के हिसाब से बता रहा हूँ, विल चेक इसका एक्चुअल संस्कृत में या जो हमारे सीनियर भक्त हैं वो लोग को क्या कहते हैं, या इसको संस्कृत में इसका कैसा इसका कंपैरिजन है, इधर इट इज सेम और इट इज डिफरेंट, वो हम लोग को किसी सीनियर भक्त से हम लोग पूछ लेंगे हम लोग। हरे कृष्णा।
या प्रभु, या थैंक यू सो मच प्रभु, एंड थैंक यू सो मच माता जी, इतना अच्छा आपने आज का सेशन लिया माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। प्रतिभा माता जी, इसको हाथ पर ऊपर। अमित प्रभु। हरे कृष्णा माता हरे जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा क्लास था माता जी, आपने बहुत सारे पॉइंट्स बताए। कल एक प्रभुपाद का मैं एक लेक्चर सुन रहा था माता जी, तो प्रभुपाद उसमें बता रहे थे कि वासना को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो कंट्रोल नहीं होगा। अगर उसको कोई कंट्रोल करेगा तो जैसे आपने एक एग्जांपल दिया ना कि जैसे शरीर तो है पर उसके अंदर आत्मा नहीं है, तो ऐसा हो जाएगा। तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको शुद्ध कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा पॉइंट था माता जी, बस वही ऐड करना था। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। रागिनी का कुछ पॉइंट। रागिनी ओके। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी, आपका क्लास बहुत अच्छा था, उसमें बहुत कुछ मतलब सीखने के लिए मिला। और वैजी माता जी ने सब वापस रिवाइज भी कर दिया माता जी, जैसे आपने सब बताया। माता जी मुझे एक छोटा सा कंफ्यूजन हुआ, मतलब सब क्लियर था पहले तो, बट अभी जैसे वैजी माता जी ने जो क्वेश्चन पूछा ना, उसमें मतलब मेरे माइंड में आया, और प्रभु ने बहुत अच्छे से उसको क्लियर भी किया कि हम उसको दो पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। एक तो जैसे कि वो वाइफ का डिजायर है तो हस्बैंड को पूरा उनके पास ही जाना है, उसको ही पूरा करना है। और एक जैसे माता जी आपने भी बताया कि वो कृष्ण भक्त नहीं थे, जिसमें श्रीला प्रभुपाद ने हरिदास ठाकुर का भी एग्जाम्पल दिया कि जैसे वो 3 दिन वो लेडी उनको मतलब डिस्ट्रैक्ट करना चाहती थी, बट वो भी भक्त हो गई। तो मतलब माता जी मुझे एक ऐसा मतलब ये मेरे माइंड में आया कि हम इसके पहले माता जी वो ब्रह्मा जी का पढ़ रहे थे, उनका कथा सुन रहे थे कि कैसे ब्रह्मा जी भी एक लेडी, मतलब उनके मन में भी डिजायर आया था कि वो मतलब उससे संबंध करेंगे। तो वो आया था कि ब्रह्मा जी तो माता जी कृष्ण भक्ति थे, तो फिर उनके माइंड में कैसे वो आया, जैसे अभी हमने ये क्लियर किया ना कि वो कृष्ण भक्त नहीं थे, वो शिवाजी को वर्शिप करते थे, और जो कृष्ण भक्त रहेगा वो उसके मन में ऐसे डिजायर। तो माता जी मुझे थोड़ा सा मतलब डायरेक्टली वो कनेक्ट किया मैंने, मुझे वो याद आया। तो वो आप थोड़ा बताएंगे? सॉरी माता जी अगर कुछ वो है तो। ये प्रश्न बहुत अच्छा है तुम्हारा, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगी। हरे कृष्णा, वो हमारे आचार्य है, और वो उसमें उस वक्त बोला था कि उनके मन में ये क्यों आया। जब ये चैप्टर हमने देखा था तभी वो था कि एक्चुअली वो भक्त थे, फिर भी क्यों आया, ये सब सीरीज उसमें हो गया था। फिर भी मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगी, मुझे नहीं आता है आंसर। हरे कृष्णा, प्रभु जी कहेंगे। हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी आवाज, हरे कृष्ण। एक मिनट। हाँ, आता है तो तुमसे आवाज अभी आ रहा? हाँ हाँ, यस यस। ओके, ठीक है, चलो। थैंक यू रागिनी। ये जो डाउट आया तुम्हारा, अब यहाँ पे फिर से वही, अगर 31 का अगर परपोर्ट देखेंगे हम लोग, तो 31 के परपोर्ट में श्रील प्रभुपाद हरिदास ठाकुर जी का उदाहरण देते हैं कि वो कृष्ण भक्त थे और इसके कारण वो कंट्रोल कर पाए। ब्रह्मा जी भी जो है वो कृष्ण भक्त है, हमारे आचार्य हैं, हमारे वो ब्रह्म संप्रदाय के हैं और हम उनके फॉलोअर हैं, हम उनके अनुयायी हैं। तो उन्होंने ये जो था, जैसे हमने उस टाइम पे भी देखा था कि प्रभुपाद जी कहीं पे मेंशन करते हैं कि ब्रह्मा जी हम लोग को एक तरह से सीख देना चाहते हैं कि ब्रह्मा जी जैसा इतना सुपर इंटेलिजेंट व्यक्ति, हम लोगों का बुद्धि तो इतना बड़ा ब्रेन में खाली कुछ % चलता है हमारा, लेकिन ब्रह्मा जी तो पूरे बुद्धि से बने, फिर भी वो भी भटक सकते हैं। तो ये एक हमारे लेसन देने के लिए उन्होंने ऐसा कार्य किया।
ये एक बोल सकते हैं वो लीला है कि मतलब हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जा रहे मैं तो कंट्रोल कर सकता हूँ करके। तो इसके लिए ब्रह्मा जी एक अपना उदाहरण दे रहे हैं वो कि मैं भी गिर सकता हूँ तो तुम लोगों को क्या 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 बात है ऐसा। तो वी हैव टू लर्न फ्रॉम दैट। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ब्रह्मा जी ने ऐसा कैसे कार्य किया। तो ही इज एन आचार्य। और वो आचार्य लोग जो मैं बोलता ना कभी कभी अपने माध्यम से गलत काम करते हैं ताकि लोगों को शिक्षा मिले। तो उन्होंने ये ऐसा करके दिखाया ताकि हम लोगों को समझ में आए अरे ब्रह्मा जी भी इतने सुपर इंटेलिजेंट। जैसे प्रभुपाद जी कई बार वो श्लोक भी कोट करते हैं कि एकांत में अपनी माता के साथ, अपनी बहन के साथ और अपनी पुत्री के साथ में भी एक जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है, एक वाइज व्यक्ति, वो कभी नहीं बैठेगा वो, क्योंकि इंद्रिया इतनी प्रबल है। इंद्रिया ऐसा कुछ श्लोक है वो कि इंद्रिया इतनी प्रबल है कि वो कोई उसको नहीं करना चाहिए ऐसे। तो वो एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पे हम लोग को दे रहे हैं कि वी शुड बी वेरी केयरफुल। इसके लिए मतलब वो ऐसा उन्होंने लीला किया। ब्रह्मा जी जो भी करते हैं लीला ही करते हैं। और वही ब्रह्मा जी फिर से हरिदास ठाकुर बन के आते हैं और वहां पे वो कितना कंट्रोल करते हैं। जस्ट मतलब है दोनों ब्रह्मा जी। हरिदास ठाकुर जी भी जो है वो भी ब्रह्मा जी का ही अवतार है। ब्रह्मा जी ने खुद मांगा था कि मैं ब्रह्मा बन के मतलब मैं एक म्लेच्छ बन के आना चाहता हूँ और आपका मैं भगवान का नाम करूंगा। तो वही ब्रह्मा जी जो वहां पे जो गिर गए, ऐसा लगता है हम लोगों को, इट वाज एन एग्जांपल। वही ब्रह्मा जी ने इतना स्ट्रांग मतलब एक वेश्या को भी उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे आचार्य हैं वो तो हम लोग को सिखाते हैं, वो दोनों तरह से सिखा रहे हैं। एक हरिदास ठाकुर की तरह कैसे अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना है, कृष्णा कॉन्शियस रहना है, और वहां पे वो एज ए ब्रह्मा ये भी सिखा रहे हैं कि डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। हम लोग को मूर्खता नहीं करनी है हम लोगों को। वी हैव टू। इसके लिए इवन सारे सन्यासी लोग हैं, इवन प्रभुपाद जी कभी अपने मतलब अपने किसी भी स्त्री के साथ में, चाहे कितनी वो 60 साल की हो 80 साल की हो, कोई ना कोई एक जो उनका शिष्य या कोई तो होना चाहिए। जितने भी महाराज लोग कभी किसी स्त्री से अकेले में नहीं मिलते हैं वो, बिकॉज वो शास्त्रों का इंस्ट्रक्शन है वैसा। वी हैव टू बी केयरफुल। तो ब्रह्मा जी का हम लोग ये बोल सकते हैं, ब्रह्मा जी टीचिंग एज ए लेसन बाय हिज एग्जांपल। ये हम लोग को समझना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुझे भी यही याद आ गया, वही ब्रह्मा जी फिर से हरिदास ठाकुर बने थे, यही याद आ गया था। और जब मैं पढ़ रही थी ये इस श्लोका के, तो इसमें भी था कि दीति और कश्यप को हमें ये नहीं लेना चाहिए अरे ये ऋषियों के ऐसे काम कैसे करते हैं। तो इन्होंने कितने सारे विनीति भी उनकी वाइफ थी और सारे वाइफ थे, तो उन्होंने कितने सारे और भी बच्चों के, जैसे गरुड़ भगवान है, ऐसे बहुत सारे, ये भगवान के एक लीला आगे बढ़ाने के लिए वो सहाय्य कर रहे थे। और उसमें था आगे के श्लोका में, पहले के श्लोका में माया से पूरी तरह दीति को कवर कर दिया था उसे, मतलब ऐसे ही करना है। तो फिर जाके आगे जाके हिरण्यकशिपु और हिरण्यक्ष का जन्म होगा, इसलिए वो इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो गए दोनों भी। और उनके जन्म के वक्त ऐसे वातावरण चाहिए था, इसलिए ये सब हो गया, ऐसे पहले से ही लिखा हुआ था। और हमारे जो आचार्य है गिरिराज महाराज, उनका भी उदाहरण आता है ना कि किस तरह जब वो जू टेम्पल के लिए जा रहे थे तो उन्हें भी ऐसे गाड़ी में उनके साथ कोई आके बैठ गई लेडी, और फिर उन्होंने भी कैसे मतलब गाड़ी के अंदर सुंदर लेडी आके बैठी, लेकिन उन्होंने तुरंत वहां पर गाड़ी रुका के उतर गए। ऐसे सबको बस में करने चाहते हैं लोग, ऐसे आचार्य है, लेकिन वो कृष्ण भक्त होने के कारण वो बच जाते हैं। हरे कृष्ण। स्वयं शिव जी भी राम जी का कृष्ण के भक्त है, इसलिए उन्होंने भी कामदेव को वश में किया था, जला के भस्म किया था। उनके पास बहुत बड़ी शक्ति होती है कृष्ण भक्त की। हरे कृष्ण। या हरे कृष्णा। यस, खाली 1 मिनट आगे मैं खाली एक बोलता हूँ। मेरे यही पॉइंट था मेरा भी कि एक्चुअली अगर हम लोग देखें, दीति माता ने, सब सोच सकते हैं कि ऐसा कैसे किया, तो एक्चुअली वो तो लीला है। वो भी वो अगर ऐसा नहीं करती तो अभी भगवान का इच्छा था ना कि मुझे युद्ध करना है, इसीलिए तो उन्होंने फिर जय विजय को राक्षस बनाए, 3 बार बनाया, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष
फिर अपना दंत वक्र और क्या नाम था उसका, दंत वक्र एंड एक और था, और कुंभकर्ण और रावण, तो वो 3 रूप में आए थे वो। तो ये तो उनको आना ही था ना, अगर वो ऐसा नहीं करती तो फिर कैसे आते। और इसीलिए वो इतने महान जो ऋषि हैं, कश्यप ऋषि, उनके द्वारा आते हैं। तो ये लीला होता है, और भगवान के जो भक्त हैं उनके साथ में जैसे ऐसा हो सकता है कि ऐसा लगे कि माया ने इनके माइंड को कंट्रोल कर लिया, लेकिन वो भगवान का इच्छा है। भगवान अपने माया से वो करवा रहे हैं, ठीक है भाई तुम अभी कामुक हो जाओ और ये करो, तभी ये तो तभी ये दोनों आएंगे ना, नहीं तो कैसे आएंगे। जैसे अगर हम लोग भगवत गीता देखें तो भगवत गीता में भी भगवान ने भगवत गीता क्यों बोला, क्योंकि अर्जुन मोहित हो गया था। भगवान का इतना बड़ा भक्त है, अर्जुन मोहित कैसे हो सकता है, लेकिन भगवान ही उसको मोह में डालते हैं। तो ऐसे भगवान के जो भक्त हैं, जैसे ब्रह्मा जी हैं, अर्जुन है, ये सब अपने को जो है ये सब लीलाओं में भगवान की वो सहायता करते हैं। हरे कृष्णा। यस रागिनी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी थैंक यू सो मच। एक्चुअली प्रभु मेरा वो क्लियर था पहले से ही कि मतलब जैसे अभी माता जी ने भी क्लास स्टार्ट किया ना, तो तभी बोला कि ये हमको एक मतलब लीला भगवान की समझ के हमको ये सुनना चाहिए कि दीति माता का और जो कश्यप मुनि का जो ये चल रहा है संभोग, वो हमें एक लीला ही समझ के उसको मतलब ऐसा नहीं मानना चाहिए, कोई गलत कॉन्सेप्ट में नहीं। बट वो एक्चुअली माता जी का वो क्वेश्चन आया ना उसमें, इसके लिए फिर वो सडनली और माता जी ने वो कोशिश किया कि नहीं वो भगवान के भक्त थे, इसलिए वो मतलब मेरे माइंड में वो ब्रह्मा जी का भी प्रभु आप पहले से ही हमने सुना था कि नहीं वो भगवान ने एक लीला किया मतलब सभी लोगों को बताने के लिए कि नहीं वो मतलब जब भगवान है वो जो पूरा उनका बुद्धि से बने हैं वो ऐसा मतलब उनका मन भटक सकता है तो बाकी लोगों का क्यों नहीं। तो इसलिए प्रभु मैंने वो नॉर्मली क्वेश्चन मतलब आया। हरे कृष्ण। चलो ठीक है, अच्छा है। ऐसे क्वेश्चन के कारण जो है रिपीटेशन होता रहेगा, तो हम लोगों को भी ऐसा नहीं है मैं एक्सपर्ट मैं बोलूंगा तो मुझे भी बार बार स्मरण होता रहेगा। तो इट इज गुड, ये हम लोग भक्तों में जो है ऐसा चर्चा होता रहे, हम लोग इसको बार बार सुनते रहे भगवान की लीलाओं को, और इसको ऐसे जो इंस्ट्रक्शंस है इसको बहुत ही अच्छी तरह से, क्योंकि ये एक बार सुनने से नहीं होता, ये इसको कई बार हम लोग डेली बोलते रहेंगे तो हमारे दिमाग में जाएगा वो। तो थैंक यू रागिनी, थैंक यू वैजी माता जी फॉर ब्रिंगिंग अप दिस। हरे कृष्णा। रागिनी, ये माता जी ये प्रश्न बहुत, और प्रभु ने ये बहुत अच्छी तरह से समझाया कि बार बार सुनेंगे तभी भी। मैं भी भूल गई थी लेकिन जैसे ही प्रभु बोलने लगे फिर मुझे याद आया, हाँ अरे मैं तो मेरे दिमाग में ये नहीं है, हमारे आचार्य हमारे हम उनसे परंपरा से तो कुछ नहीं बोलना है। मैंने ये डाल के रखा था कि गलती से भी क्या बोलते गलत भावना ना आए, क्या निंदा अपराध न लग जाए। और जब अभी प्रभु ने बोला तो फिर से सब याद आने लगा, बार बार सुनेंगे तभी। और इसमें आज के लेक्चर में एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था कि अगर हमारे ये सब इंद्रियों के ऊपर काबू करना है तो नित्यम भागवतम वो करेंगे तो हमें एकदम निष्ठा की ये काम वासना के ऊपर विजय प्राप्त हो सकती है। भागवतम सुनने से बहुत अच्छा रहता है। तो वो पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण था। तो इसलिए जितना भागवतम सुनेंगे उतने हम लोग भक्ति में भी अच्छे रहेंगे, इस सब में मन नहीं फंसेगा। और जो भी ऐसे बहुत सारे ऐसे खासकर लड़के लोग के लिए बहुत मुश्किल होता है जब वो रास्ते से जाते हैं और आमने सामने प्रभु जी कुछ एग्जाम्पल दे रहे थे कि जहाँ पर भी जाए ना, हम लोग तो नहीं जाते किसी स्त्री के पास, लेकिन कोई स्त्री अगर हमारे पास आ जाए और बोलने लगे और बहुत सारे क्वेश्चन करने लगे तो ऐसे सुंदर स्त्री आके फिर बात करने लगे और फिर उसके ऊपर मन आकृष्ट होता है, तभी प्रभु बोले तभी याद रखने का कि हम है ना अभी एक जहरीले सर्प के साथ डील कर रहे हैं। तो कैसे सर्प से कैसे बचा जाता है, कभी भी वो डंक मारेगा, ये अपने ध्यान में रखना है। और दूसरा कभी ऐसी तुम्हारी और भी इच्छा हो जाए तो ये सब भगवान की शक्ति है, ये हमारे काम के नहीं, ये सब भगवान के यूज के लिए, हम इसका भोग नहीं कर सकते, ये हमेशा ध्यान में रखना है। हरे कृष्ण।
यस माता जी, एक्चुअली आपने एकदम सही बताया माता जी। और प्रभु भी बोले कि हम जितने बार उसको सुनते हैं ना, उतने बार हमें एक नया नया मतलब बोलते हैं ना, उसको नए वे से, हम उसको नए एंगल से, ऐसी गौरांग दर्शन प्रभु भी बोलते कि हम जितनी बार उसको सुनेंगे उतने बार हमें एक नए एक्ट से पता चलेगा कि हमने ये लास्ट टाइम मिस किया था। तो अभी मैं अगर जैसे सुनती हूँ ना, तो अगर कुछ पीछे का कनेक्ट रहता है तो वो सडनली पता नहीं, अचानक बाय मिस्टेकली, पता नहीं, वो मेरा वीकनेस बोल सकते हैं प्रभु की, वो मेरे माइंड में आ जाता है। तो इसलिए फिर वो क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग सॉरी पॉइंट है वो, सॉरी प्रभु। स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो, वीकनेस वीकनेस नहीं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो, याद आना चाहिए। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, स्मृत गुरुविंद की जय।